I think just let yeah. Yeah, a very good morning, dear participants. I'm very delighted and again happy to be here with all of you to welcome you to this second session of day 11 of this wonderful 2 weeks online interdisciplinary refresher course. On behalf of ARSD College and in collaboration with Ramanujan College, University of Delhi, and IQAC, ARSD College, my honorable principal, Professor Gyantosh Kumar Jha, on behalf of him, on behalf of IQAC in charge, Professor Vinita Tuli, and on behalf of my entire team here, Professor Anjali ji, my tech team here, the entire team here, and most important, all the participants here at present. We are having 183 participants on a Saturday, lovely Saturday morning. They're all academicians and teachers and professors from across India. They have joined us from various colleges and universities across India. So yeah, I'm happy to welcome you all here to this wonderful session here, and I feel very delighted to and happy to introduce you to our next speaker, resource person, which is right there. She's here, my dear resource person, and our speaker of the next session, Vibha Gurtu. And Vibhaji is the founder and director of Spiritual Tara. She's the author. You can see the on the screen. I'll be sharing. My tech team would be sharing her book and her clippings. She is the author of Tara, A Woman's Journey on Faith from Fear to Freedom. What a wonderful explanation. Fear to freedom. Vibhaji would be talking to us since she would be talking to us on the topic from stress to understanding via chakras, relationship with self. I would just give you a brief introduction of Vibhaji. She is an intuitive healer with over 20 plus years of experience in various holistic healing modalities. Vibhaji calls herself a teacher, a practitioner, and a facilitator of shamanism, as well as a spiritual guide and image consultant. She is a talk therapist. She helps people discover their authentic self and take charge of their lives. Passionate about practical spirituality, Vibha's journey has evolved from being a teacher to a businesswoman and a soul coach. She has had her education. She's done her BEd, MA, and journalism with a journalism background. She is an image consultant, a life coach. She has been associated with various healing modalities from Reiki, pranic, hypnotherapy, tarot, chakras, etc. She passionately enjoys to hold workshop on balance between worldly pleasure and detachment. She's held workshops with corporate worlds like IBM, Genesis BM, JCB, NASCOM, DU, schools, INGAP, Shankaracharya Institute, and many more such. She is already, like I told you, author of the book Tara, A Woman's Journey of Faith from Fear to Freedom, which was blessed and autographed by His Holiness the Dalai Lama. Vibha is she is the president of Om Tara Foundation. She is the co-founder, like I already told you, of Spiritual Tara. And my dear participants, I am extremely honored and happy to welcome Vibhaji, our next speaker here. Vibhaji is, I think, I should not be. I would just like to mention one thing that she always mentions that she explains difficult into in a simple way. So she's always there to explain the difficult part of her expertise that she's going to talk to us in a simple way. So, Vibhaji, I welcome you. Namaskar, and the stage is yours. Thank you so much for taking time out. Namaskar. Thank you, and thank you to each one of you, and especially being patient.
the truth and only the truth, which I always feel. This time, my son gifted me Apple, the Mac, and I'm used to my other laptop. And I wanted to begin with this, and so much of confusion. And I'm like so nervous. And I said, "Oh my God!" And then the chakra, this workshop is there, and I'm thinking, "Oh my God!" You can imagine, who's been using Dell, and then suddenly son gives you, "Okay, start using Mac." And I said, "Okay, fine. Now what?" So this is it. And thank you for being patient. And thank you, Mubin. And so today the topic is chakras. Basically, this is something very dear to me, to my heart. And I think all of you would be associated with this chakras, right? So for 3 minutes, we'll just shut our eyes and just sit down and just connect ourselves with ourselves, right? So thank you. You may open your eyes. Isn't it true that at times even 3 minutes or 1 minute seem to be so long? And sometimes it just go in a jiffy. So आज जो टॉपिक है स्ट्रेस टू अंडरस्टैंडिंग, एक मेन है टॉपिक, बट रिलेशनशिप टू सेल्फ, उसको बहुत सिंपली मैं एक बेसिक्स के साथ आपको रूबरू कराऊंगी, या हम बातचीत इस पे करेंगे. So should I begin, Mubin? And with your permission? Yes, Vibhaji, we have the chat box. So in between, if you feel you want some reactions or you want to talk to somebody, you just let me know. They will. Yeah. Please. So Please. I haven't, can they see the PPT? No, nothing, right? Not PPT. required. Not required. PPT. So So if you want to share, you can share it. No, I feel let it be. Let me talk and let them be fine. Will that be Whatever. fine? Whatever. Yeah. Yeah. So, No problem. so जब हम चक्रास की बात करते हैं, सो वो नीचे से मूलाधार और ऊपर से सहस्रारा, ये जो एक एक चक्रास जो हम बैकबोन पे जब हम बात करते हैं कि हमारी स्पाइन में वो चक्रास का वास है. So I think PPT would be fine, right? Yes, We yes. can You can see do. that. Can you Yeah. share screen, or you can just send it across? I'll Yes. ask Baljeet, my tech team, to just send it to me on WhatsApp. I'll share it with or Okay, whatever. okay, I'll okay. just share it. Yeah. Okay. No, let Yes. it be, let it be. फिर वो गड़बड़ हो जाएगी शुरू. Let it be. रहने आप दो. भेजिए आप भेजिए मुझे आप भेजिए. हाँ, मुझे रहने दो. ये यहाँ से कुछ नहीं हो सकता. मैं नहीं कुछ कर सकती अभी नहीं, इसमें. आप मुझे WhatsApp पे PPT भेजिए विभा जी. WhatsApp पे भेजिए आप. Okay. My Let it be. tech team will share. Please send it. Okay, done. And how will I put it on WhatsApp? I don't know right now. Let it be. Let it be. It is not Okay, meant to fine. be. Let it be. So, तो जब हम चक्रास की बात करते हैं तो वो एक सटल बॉडी है. चक्रास वो है जो हम सांस लेते हैं. चक्रास वो है जहाँ पे जो शुरुआत हुई वो एक व्हील, जिसने ये बोला कि आपकी स्पाइन में हमारे पास वो एनर्जी नोड्स हैं जो पूरी तरह से ब्रह्मांड की जिस ध्वनि के साथ वो घूमते हैं. चक्रास, जब सटल बॉडी की बात हो रही है तो हमारे जो एनर्जी नोड्स हैं वो चक्रास को बयान करते हैं. तो जब भी चक्रास की बात होती है तो सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी ने इसे गोरख षटकम में इसे प्रेजेंट किया, और ये एक तंत्र की मेडिटेशन के साथ आया. वो तंत्र जो आपको आपसे ही रूबरू कराता है और उस शक्ति के साथ
एक मत हो जाता है। सो यहाँ पर जब वो साधना में बैठे, जब वो शांति में बैठे, तो उन्होंने अपने आप की हर दशा, हर हर पहलू को, हर विचार को, और हर जो इसको कहते हैं इमोशन को, उस एनर्जी मोड्स के साथ समझना शुरू किया। तो चक्रा जो, जब हम बैकबोन की बात करते हैं, तो ह्यूमन एवोल्यूशन में जब तक जानवर अपने 4 पैरों में चल रहा है, और जब वो इंसान बना, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, उसी ने सारा खेल शुरू किया, है ना। और वहीं पे चेतना शुरू हुई, वहीं पे अवेयरनेस आनी शुरू हुई। तो वही चक्र है कि आप उसके एक अंश हैं और आप उसके साथ जुड़े हुए हैं हर वक्त। और ये चक्र की अंडरस्टैंडिंग जो है, वो हमें बहुत खूबसूरती से समझा देती है। तो जब हम कभी भी फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैस्लोज लॉ की बात करते थे, आई थिंक आप सबने मैस्लोज लॉ सुना होगा, तो वो भी एक चक्रा के ऊपर ही पूरा प्लान किया गया। सो नीचे की फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई, फिर आई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर आया लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर आई सेल्फ एस्टीम, फिर आया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो हम अगर अपनी रीढ़ की हड्डी, अभी कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, और हम अगर रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं, तो हमारे जो सबसे पहली जो L5, जब हम कहते हैं बिल्कुल नीचे, वहां पर मूलाधार, सबसे पहला जो चक्र है, उसको माना जाता है जो हमारा मूल आधार है, जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है जब हम सीधा बैठते हैं। और उसी जगह को हम कहते हैं जिस पे हमारा रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ निर्धारित है। सो यहाँ खूबसूरती की बात यह है कि क्योंकि हम ऑरा की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे 7 रंग जो इंद्रधनुष के हैं, वो आ जाते हैं। तो सबसे नीचे का जो रंग है वो है लाल, राइट। और लाल हमें बताता है सर्वाइवल, लाल बताता है कि ये रूट चक्र है, लाल है जो हमें ग्राउंड करता है, लाल है जो धरती की गर्मी को हमें, उससे हमें महसूस कराता है कि हम हैं, हमारे पैरों के नीचे जमीन है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हर किसी के पैर के नीचे जमीन होना तो स्वाभाविक है, बट हर किसी के सिर के ऊपर छत होना वो जरूरी नहीं। तो वो जो मूलाधार है, वो रोटी, कपड़ा, मकान, छत, सिक्योरिटी के ऊपर है। और मजे की बात यह है कि मैं कोई फोटो नहीं दिखा रही यार, बट आई फील कि आप लोग इसे एसोसिएट कर पाएंगे। ये भी एक शायद आज होना था कि भैया मुझे ये बिल्कुल नया हो रहा है मेरे साथ ये भी, लेकिन आपको, आप एसोसिएट कर पाएंगे। तो आप उस जगह पे जब आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, तो वो है जहां पे हम सर्वाइवल की बात करते हैं, जब फाइनेंस की बात होती है, जहां पर आपकी सिक्योरिटी की बात होती है, राइट। यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे के ही चक्र पे जा रहे हैं, उसको हम लम बोलते हैं। वहां पर हमारा अस्तित्व, हमारी एग्जिस्टेंस बैठती है, आई एम। अब जानवर से जब इंसान बना, इंसान और खड़ा हुआ, तो उसने कहा मैं हूं। मैं, ये एहसास कराता है मैं का, मेरे शरीर का, मेरी जमीन का, मेरे रिश्तों का, मेरा होना सबसे जरूरी है। उसके बाद आपके सर्कल्स शुरू होते हैं। पहले मैं हूं, तभी सब कुछ है ना। जब मैं ही नहीं हूं तो क्या है, फिर तो काल्पनिक है, राइट। तो मैं और मेरे शरीर का होना और उसके अंदर वो आत्मा का वास होना, ये 2 चीजें जो हैं वो सबसे खूबसूरत है, और वही चक्रा की जर्नी होती है। तो यहाँ जो रूट चक्र है, मूलाधार है, वो अर्थ रियलिटी का है, उसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है। ये मेन कनेक्शन है फिजिकल रियलिटी से, फिजिकल वाइटलिटी से, एंड्योरेंस से, मेंटल परसिवरेंस से, और हर तरह के यहाँ पर डर और सुख सब कुछ यहीं पर बैठते हैं। यहाँ स्टेबिलिटी भी है, जरा सी कोई प्रॉब्लम आती नहीं
कि सबसे पहले हमारी जो कमर होती है ना, वो कड़क बोलती है। वो कहते हैं भाई जब तुम किसी से खास बात करने हो, कहते क्या कोई ट्रॉमा तो नहीं आया, कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं आई थी, हुआ क्या? अचानक तुम्हें वो फील होता है कि अरे यार कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये हिस्सा है जो सबसे पहले इफेक्ट होता है, और ये है लाल रंग। और लाल रंग की खूबसूरती क्या है? रेड कार्पेट वेलकम। जब हम कहते हैं भाई राजा है, वेल्दी है और भरपूर है, तो लाल रंग है जो बताता है धन धान्य से भरपूर है, जमीनें हैं इसकी। ये क्या है? हम्म लाल। हम्म शक्ति, शक्ति जो है वो लाल में है। जब हम कहते हैं लाल रंग, अरे भाई रेड, बोल्डनेस दिखा दी बंदे ने, है ना। हम्म लाल, लाल जब वो लेडीज जब लाल लिपस्टिक लगा के निकलती है ना, तो वो पूरी अपनी फेमिनिटी के उस पे होती हैं, बोलो कि भाई I can be myself with that redness. So this is what the Mooladhar is, right? And it talks about your health, stability, safety, comfort, security, happiness, right? Now, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आके बैठ जाती है वो है डर। तो अगर किसी के पास पैसा ना हो तो सबसे पहले डर है। कभी हम जब छीनते हैं तो उसकी तनख्वाह बंद कर देते हैं, अरे यार लोन लिए हुए हैं और घर का खर्चा पूरा करना है, पहले कम से कम हाथ में धन हो, पेट में अन्न हो, तब तो तुम रीढ़ की हड्डी पूरी खड़ी होगी ना। जब यही नहीं है तो right. कैसे कोई बात होगी? तो शुरुआत जब कहते हैं कि राजा है, सब कुछ है, अब ये क्या करेगा, तो सारी प्रजा देखने लगती है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा शक्ति है। इसके इश्यूज क्या हैं? अब हम इश्यूज पे आते हैं। तो इश्यू क्या है कि अगर ये चक्र आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है, अच्छा तो हमने बता दिया कि भाई सब कुछ है, कॉन्फिडेंस भी है, पैसा भी आ रहा है, तनख्वाह भी आ रही है, सब कुछ है, घर में छत भी है, सब ठीक है, सेहत भी ठीक है। बट अगर प्रॉब्लम है तो कहीं फिजिकली कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई कोई आपको फिजिकली अब्यूज तो नहीं कर रहा जिंदगी में कि डर आ जाए? क्योंकि यहाँ आके डर बैठता है। यहाँ पे कहीं पैसे की कमी तो नहीं आ गई? और ऐसा चक्र माना जाता है कि चक्र अपने बैलेंस में जब होते हैं तो आप सब तरह से ठीक होते हैं, ना ही लालच आता है, ना ही डर होता है। तो जब ये चक्र पूरा बड़ा होता है और यहाँ पे इम्बैलेंस आता है, तो यहाँ पे पावर का गुरूर आना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं भाई कुर्सी और पैसा चढ़ गया सिर पे, तो हुआ क्या? मूलाधार आपका इम्बैलेंस होने लगा, ज्यादा बढ़ने लगा। तो आपने बैलेंस नहीं किया सारा कुछ। यहाँ पे कॉन्फिडेंस होना एक चीज है, जब आपका चक्र या कम या ज्यादा, जब ज्यादा में है ओवर कॉन्फिडेंस, जबकि ओवर जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे लैक भी बता रहा है और यहाँ पर गुरूर भी बता रहा है। तो ये मूल आधार से पता चल जाता है। यहाँ पर जब कुछ नहीं होता, फियर आ जाता है, तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि डर गए, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या होगा, तो तुम भाग जाओगे। या अपने आप को, कितने ऐसे केसेस अगर आपने अखबार में भी पढ़े हो और मैंने नाटक भी देखे कि भाई फाइनेंशियल लोन्स इतने आ गए कि भाई पूरा परिवार सुसाइड कर लिए, राइट। यहाँ पे एडिक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं, डर पे है। यहाँ पे किसी ना किसी तरह से आपका जो जो कॉन्फिडेंस है वो हिलने लगता है। ये मूल आधार है जो रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे है। सो जब हम कहते हैं सिट स्ट्रेट, सो हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी सीधा रखो, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, राइट, वॉक स्ट्रेट, शोल्डर बैक, वॉक स्ट्रेट, लुक इट इन द आईज। बट यहां तक पहुंचने के लिए अपने आप का होना, ये मूल आधार बताता है। यहां तक ठीक? Yes, please. या Bhavna has just given some Maslow's hierarchy of needs. दैट्स इट। सो दैट्स वेयर मैस्लोज हायरार्की के साथ ये आने लगता है। Yeah, you can continue, no problem. या They'll keep. We'll be taking QA in the end once when you're done. या Yes, सो please. ये जो चीज है यहाँ पर अब एक बहुत मजेदार चीज है।
जब हम किसी से भी कोई भी बात करते हैं तो क्या होता है कि अब नेक्स्ट जब आपके पास सब कुछ आ गया, जब आपके पास आ गया सब कुछ, अब आप क्या करेंगे? अब आपकी चीज आती है ऊपर स्वादिष्ठान। वो है आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स, वो है आपके जहां पर आप ये कहते हैं कि भाई अब ये सब कुछ होने लगा है, मेरे पास पैसा भी आ गया है और मेरे पास अब और क्या, अब मुझे प्लेजर चाहिए, अब मुझे चाहिए जहां पर मैं डिजायर्स करता हूं। पहले तो कहते हैं ना, पहले बेटा पैसा कमा ले, अब बेटा पैसा कमाने लगा है अब इसकी शादी करा दो। हम्म भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो चाहिए, राइट? हम्म हम्म तो यहाँ पर अब आपके पास आया पैसा और उसके बाद आई आपकी स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान जब आया तब आपने देखा कि भाई यहाँ पर तो डिजायर्स आने लगी, प्लेजर्स आने लगे। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें आपको महसूस होती हैं जब आप कहते हो कि सारी सेंसेस यहाँ आने लगी, यहाँ सारी सेंसेस आने लगी। अब आप कहते हो कि भाई मजा आया। अब इसका अक्षर है वम, और यहाँ पर हम अब रूल करने लगते हैं। अब पैसा आया तो माँ खाना बनाने की जरूरत नहीं है, आज बाहर से खाना खाएंगे। चलो भाई बताओ इस बार हॉलिडे कहाँ जाना है, राइट? अरे तुम्हें नए कपड़े चाहिए, चल बता यार पैसा आया है और मजे से कौन से वाला रंग तुम्हें पसंद है, तुम बताओ कौन सा। अब इसका जो जो खूबसूरती है, जब हम ऑरेंज रंग की बात करते हैं, जैसे वो रेड कार्पेट वेलकम था, अब यहाँ पर ऑरेंज जो रंग है वो त्याग भी बता रहा है, उसका ऑपोजिट। सो जब हम गेरुए वस्त्र पहने लोगों को देखते हैं तो उनका ये होता है कि उन्होंने वो सेंसेस डिजायर्स त्याग दी हैं। तो चाहे वो विवेकानंद हो या कोई भी हो, तभी जब धोखा मिलता है या कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं गेरुए वस्त्र वाले ने, संत ने धोखा दिया, गलत किया, बट उसको कैसे लालच आ गया, वो तो त्याग चुका था, तो उसने वो गेरुए वस्त्र संन्यास उसे धारण किया। सो ये आया सेक्सुअल एनर्जी, प्लेजर्स, यहीं पे सारा ऑर्गेस्मिक, ऑर्गेजम फील करना। ऑर्गेजम सिर्फ सेक्स से नहीं, हर इंद्रियों से ऑर्गेजम फील करना, है ना? सिर्फ वो जो आप किसी को कोई चीज देखते हो और आपको एक क्षण भर की खुशी आनी, आपने कुछ स्वर सुना, राग सुना, किसी की पोएट्री सुनी और आपका सारे के सारा चक्रा खुल गया, हार्ट खुल गया, है ना? सडनली सर यस यार क्या धुन थी यार, वो बारिश हम्म का गिरना, उसकी जो हम्म बारिश की बूंदे जब गिरना तो वो भाग के निकल के उसमें नहाना, ये स्वादिष्ठान है। जैसे वो ओशो कहते हैं संभोग से समाधि तक का सफर, या जिन्होंने भी इस चीज को समझा। सो यहाँ पे इंद्रियों से, इंद्रियों को पूरा पूरी तरह से जीवंत रखना, to live a life, to live every moment is now with the sexuality. I live with every moment. I enjoy my sexuality. I enjoy the senses. I value that. अब इसमें जो जो जैसे वहां पे फियर था, यहाँ पे हम्म शेम डाल दिया जाता है। अरे क्या बात है, बहुत आजकल पढ़ निकल रहे हैं, शेम, यहां से डराया जाता है। देखो जरा, अरे इतना सारा सच धर के बाहर निकलने की क्या जरूरत है, क्या है, क्यों भाई आजकल बहुत सेंट लगाने लगे हो, कुछ चल रहा है क्या? इतना तुम्हें पता नहीं है, विद्या के उधर आ रहे हो या ऑफिस में आ रहे हो तो कपड़े कैसे पहनने हैं? तो हमने शेम से उसको ढक दिया और आपने हम्म लिख लिया। कभी बचपन में जब बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, और माँ बाप ही बोल देते हैं या घर का कोई बड़ा ही बोल देता है, तो तुम एकदम छुप जाते हो, तुमने अपने आप को रोक लिया, तुमने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं आई एम फाइन विद वॉट एवर इट इज। लेकिन पहला स्वादिष्टान आपके स्वाद से शुरू हो जाता है और आप कहते हो माँ का यार खाना कोई और नहीं बना सकता। यहाँ स्वादिष्टान शुरू हो गया, यहाँ से डिजायर शुरू हो गया। वो वाला बनाएंगे ना, वो वाले छोले भटूरे खाएंगे हम, ओल्ड राजेंद्र नगर के स्टैंडर्ड के खाएंगे, राइट? नहीं तो नागपाल के खाएंगे। यहाँ शुरू हो गया आपका स्वादिष्टान। अब इसमें हम्म पूरी तरह से जीना, तो अपने आप की, अपनी सेक्सुअलिटी को वैल्यू करना, उसको
उसको रिस्पेक्ट करना। जब वो अब्यूज होती है, चाहे किसी भी वजह से शेम दी जाती है, तो आपको गिल्ट फील कराया जाता है, तो आप रुक जाते हो, आप प्लेजर्स एंजॉय करना बंद कर देते हैं, आप प्रेम से भी डरने लगते हो, आप स्वतंत्रता से डरने लगते हो और अपने आप को बांध लेते हो। मैं आपको दोनों चीजें बता रही हूँ, राइट? एक एग्जिस्टेंस और उसका फियर, एक यहाँ पे प्लेजर्स और उसको कैसे हम ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, अब जिनका इम्बैलेंस होता है वो तो पूरा ही फुल ऑन भैया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भैया, बंदे पूरा पूरी अदाएं हैं। कहते भाई ये गड़बड़ हो गया है, ये ऑब्सेस्ड हो गया है, ये बैलेंस नहीं है। क्योंकि सारी जिंदगी का जो एक ही मत है वो बैलेंस एंड सीकिंग हैप्पीनेस है। तो चाहे स्ट्रेस कोई कारण बने या स्ट्रेस से लेके अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस द हाईएस्ट चक्रा वो कारण बने, लेकिन वो चाह बने उसका हर एक का एक स्टेप है। तो स्वादिष्ठान जो है वो अपने आप को स्व और उसका पूरा मैं हूं नीचे आया और मैं जीवंत हूं, मेरा रोम रोम सांस ले रहा है। ये चक्र जो बैलेंस होता है वो हर खुशी में अटैच होता, उसको समझ आता है, डिजायर समझ आता है, और अपने आप को बैलेंस करके उस चीज को छोड़ना भी समझ आता है। यहाँ डिटैचमेंट भी समझ आनी शुरू हो जाती है। अटैच और डिटैच दोनों का खेल है स्वादिष्टान। अब ये हो गया, अब नया फोन भी आ गया। आज तो मुझे नया मैक मिल गया जो मुझे बहुत ही बड़ा ही परेशान ठीक है जी, माँ आपके लिए हाथ हो गया, बट अब जो भी है। सो एनीवे, तो अब ये आ गया, अब आपकी जॉब आ गई, अब आपके पास पैसा आने लगा और आपने बेस्ट एक जगह, आपने गाड़ी का भी किया कि भैया, अब आपने मकान के लिए भी बुकिंग की, नहीं उस सोसाइटी में करेंगे, इतना लोन लेंगे, इतना, अब आपकी प्लान। अब आप में आया मणिपुर, थोड़ा ऊपर, नाभि से नीचे और ऊपर, और ये है पावर सेंटर, ये है येलो कलर, ये है सन एनर्जी, और यहां पर सारा एक्शन आता है, राइट? अब कहते हो मैं, अब आई पावर। कौन कमा के ला रहा है? पहले बेटा कमा के लाना, फिर बात करना, अभी तो पढ़ाई कर लो, ठीक है ना? जब कमाने लगोगे ना, तब पता चलेगा कि बाल जो है ना, हमने धूप में नहीं सफेद किए। अब ये पावर गेम हुई, राइट? यहां पर है येलो सन की पावर, ये है रम, इसका जो स्वर है वो रम है। ये है ईगो, ये है एक्शन, ये है मैं कंट्रोल भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। पैसा आ गया, डिजायर्स आ गई, अब उसके बाद तो कंट्रोल आएगा ना। अब आप मैस्लोज लॉ के उसमें आप ऊपर चढ़ रहे हैं, अब आप मैनेजर बन गए हैं। अब आप कहेंगे नहीं तुम नहीं, तुमसे बात नहीं, तो कहेंगे अरे यार इजाजत मांगो, नहीं यार इजाजत मांगने, हाँ हाँ इसका सिग्नेचर मैटर करता है। यहाँ आपकी जो मैटर करती है कुर्सी, औदा, कैश फ्लो, राइट? कितना दे रहे हैं शगन, कितना जाना है, किसने क्या दिया, किसने। अब ये पावर गेम है जहां क्या कहते हैं, उगते सूरज को सलाम ही होता है अब तो। भैया राजा है, पैसा भी है, सब कुछ है, राइट? सारे मजे हैं, 10 रानियां क्यों ना हो, पहले कहते नहीं थे भैया राजा है उसकी मर्जी मैं बहुत जी, सिंपली आपको समझा रही हूँ कि नहीं नहीं, मतलब इस ब्यूटीफुल तरह प्लीज। से। और फिर मणिपूर्ण आता है, कंट्रोल है भाई, सिग्नेचर किसका है ना? तो कहते हैं हाँ साइन कराने आ जाइएगा। अब वो साइन कराने के लिए कतार लगी हुई है, क्यू में खड़े हैं आप, आपकी बारी आएगी, है ना? क्यू में नंबर है आपका 57, आपकी बारी आएगी वहां पर। सो ये हो गया कंट्रोल गेम। यहाँ आया आपकी पावर गेम। और यहीं पे आप किसी को नीचा कर सकते हैं, बेइज्जत कर सकते हैं, उससे छीनने की, उसको बौना बनाने की। आप अगर, जब हम डिसबैलेंस होता है, जब आपने अपने आप में पावर ली, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। विद द सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्शन, टाइमली एक्शन, एंड टेकिंग कमांड एंड कंट्रोल वेरी ब्यूटिफुली।
बट आप जब उसको डिसबैलेंस्ड हुआ तो आपने दूसरे को नीचा करना शुरू कर दिया, राइट? अब नीचे करने में क्या होगा जी? अब नीचे करने में ये आएगा कि आपने जो भी चीज सोची है वहां पे ये है कि ईगो गेम चल रही है, कॉन्फिडेंस की गेम चल रही है, पावर की गेम चल रही है। अब इसमें हम्म, इश्यू क्या है? डू यू लाइक टू कंट्रोल अदर्स और यू लैक सेल्फ कंट्रोल? यहाँ सेल्फ हम्म, एस्टीम है। डू यू हम्म, लैक कॉन्फिडेंस और यू आर ओवरली कंसर्न विद व्हाट अदर्स आर थिंकिंग? डू हम्म, यू लैक बाउंड्रीज? हम्म, आर यू अशेम्ड ऑफ समथिंग? आप कहते हैं ना, अपना डर दिखाओगे दूसरा कंट्रोल कर लेगा। डर मत हम्म, खाओ, आंख से आंख लगा के फिर देखते हैं क्या होता है, राइट? हम्म, डू यू थिंक दैट तुम्हें डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा जब ये डिसबैलेंस होता है? क्योंकि एक्शन नहीं ले पा रहे, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, आपको दी नहीं गई। क्या आप क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल कंप्लेनिंग या क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं? यहां स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि यहां आके गेम नीचे से अब ऊपर चढ़ने लग रही है। यहाँ परफेक्शनिस्ट, जहां डिसबैलेंस है वहां परफेक्शनिस्ट बनने लगते हैं कि अब हम बिल्कुल ठीक तरह से काम, आई लाइक माई वर्क टू बी डन लाइक दिस, 1 2 3 4 एंड नथिंग। वहां पे कोई आपके कोई भी हाशिया नहीं है, कोई भी कॉमा नहीं है। कमांड गिवन, टेकन, 10 पॉइंट्स, 10 कमांडमेंट्स। जो भी। सो आर यू टू फ्लेक्सिबल हम्म, और यू लैक टू लैक फोकस और लैक ये मैं डिसबैलेंस की बात बता रही हूँ। हम्म, आर यू अफ्रेड टू बी अलोन और नर्वस? और इसे चल यार देखेंगे क्या होता है। सो आपने सेल्फ कंट्रोल ले लिया। यहाँ गेम है सेल्फ कंट्रोल की। okay? अब हो गया, कंट्रोल भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब हमारा जी दिल खुला, हो गया ना, पावर भी आ गई, ये भी आ गया। अब ऊपर तो चढ़ना ही है। कोई भी चीज या नीचे आके बैठती है, थमती है, या थोड़ा सा लगाओ धुआं तो ऊपर उड़ने लगता है। तत्व है ना सारे, राइट? तो यहाँ पे हम हार्ट पे आके बैठते हैं जब हमें चोट लग जाती है, जब जब अच्छा लगने लगता है तो कहते हैं भैया अब हम ये खाएंगे, अब हम वो खाएंगे, और हम अब मोहब्बत की चीजें खुलनी शुरू हो जाती है। लव आ जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाता है, कंपैशन आ जाता है। ये हार्ट चक्र, सब कुछ ही हार्ट चक्र है, क्योंकि बैलेंस करता है वो 7 चक्र, उसको नीचे के 3, ऊपर के 3, और बीच में बैठा है हार्ट चक्र। ये बैलेंस कर रहा है। अब जर्नी ऊपर आनी शुरू हो गई। अब ये इमोशनल सेंटर है, ये है यहाँ पर अभी जैसे आ, नीचे का, जैसे हमने मूलाधार बोला, वो अर्थ था, स्वादिष्टान वाटर था। जब हम ओशन और सीज के पास बैठते हैं तो हम कहते हैं वाह यार क्या मजा आता है। जब बारिश में भीगते हैं तो क्या मजा, वो स्वादिष्टान है। फिर मणिपूर्ण आया, फायर सेंटर। अब आया एयर सेंटर, दिल। चल माफ किया, राइट? फॉरगिव दूसरे को नहीं, अपने आप को भी किया, प्यार दिया, और प्यार के लिए रिसीव करने के लिए खुल जाना। रिलेशनशिप सब आने शुरू हुए, फीलिंग्स आनी शुरू हुई। अब हम इमोशनल हो गए हैं, अब हम स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। बट यहां पर बैठता है, जैसे वहां पर फियर, शेम, गिल्ट, ईगो बैठते हैं, यहाँ ग्रीफ बैठता है। यहाँ पुराने ट्रॉमास आके बैठ जाते, दिल दुखता है, रोना आता है जब वो याद आ जाती है। वहां पे आके किसी ने इतनी जोरों से हर्ट किया कि वो ग्रीफ, वो दुख आके बैठ जाता है। और ग्रीफ का कोई अदर तरीका नहीं है हील करने का, सिवाय मोहब्बत के, सिवाय एक्सेप्टेंस के, सिवाय नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस के। यहाँ पर अब हम ग्रीफ को, जब हम कहते हैं ना पहले हील करो फिर प्यार करो, मैं कहती हूँ कि प्यार जब मिल जाता है, हीलिंग खुद ब खुद होने लगती है। ट्रू। हम्म, जमीन पे आपने सीड डाला है, उस पे पानी पड़ेगा, वो पहले उसको अंदर जमीन पे डालना है, और पानी पड़ा और उसको प्यार किया पौधे को, वो अपने आप खिलखिलाने लगेगा, राइट? नहीं तो वो जज्जर वहां होके खत्म हो जाएगा।
दुख में। सो यहाँ मोहब्बत की गेम है, यहाँ माफी है। और ये ग्रीन है, तो जैसे हम जितने पुराने में तो हॉस्पिटल्स के सारे दर वो ग्रीन होते थे। हमें याद होगा, अगर आप लोगों को, अब तो खैर कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन होता है वो अलग है, लेकिन ग्रीन पट्टी भी लगती थी, वो ऐनक के अंदर ग्रीन। ग्रीन हमें हील करता है, तभी कहते हैं जाओ भाई ग्रीन में जाके घूमो, जाओ जाके गीली घास में जाके, ओस वाली घास में नंगे पैर, वो हील करेगा तुम्हारा। जाके कहीं ग्रीनरी देख लो, सुबह देखो जरा, वाह, पानी धो देता है, ग्रीनरी खिलाती है, दिखाती है कि वो अंकुरित है, कोई चीजें जिंदा है। अभी तो अभी मौसम शुरू हो गया मॉनसून में, तो तुम देखो कितनी ग्रीनरी नजर आती है। तो यहाँ पर जो इशू आ जाता है वो ये है, आर यू सैड फॉर समथिंग, फॉर द लॉस यू हैव फेल्ट, देन दिल यार धड़कना बंद हो गया है। यहाँ पर ये है कि भाई दूसरे को छोड़ो, मैंने अपने आप से मोहब्बत करनी बंद कर दी है। मैं मशीन बन गई हूं या बन गया हूं, मुझे पता ही नहीं कि मैंने कब अपने आप को देखा। यहाँ अब आपकी दिल की धड़कनें बोलती हैं। जब स्वादिष्टान में हम कहते हैं कि चलो भाई, जब आप स्नान कर रहे हो तो अपने शरीर से बात करो, जब इत्र लगा रहे हो या सेंट लगा रहे हो तो ऐसी ऐसी नब्ज की जगह लगाओ। और दिल कहता है कि यार मैं धड़क रहा हूं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं मेरी फ्रीडम या मेरी आवाज बंद तो नहीं हुई, तो सबसे पहले यहाँ दिल होता है। किसी ने यस और नो का डिफरेंस खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। कहीं अबैंडनमेंट, रिजेक्टेड फीलिंग्स रह जाती हैं छोटी सी चीजों में, वो बचपन की एक याद यहाँ रह जाती है। वो फिर आप उस यादों को जब लाते हो तो कोई सुनने वाला, कहते कोई और चीज सुनने कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को सिर्फ एक इंसान भी हो जिसके सामने तुम बेनकाब होकर सिर्फ कह सको, और दूसरा खुल के झोली फैला के तुम्हें सुन सके, दैट्स इट, विदाउट कटिंग यू। हम लोग तो बहुत अच्छे हैं ना, वो वाह बट यहाँ दिल जो कहता है ना, वो तो बहुत इजीली करते हैं। और हम अपने पे भी, दूसरे को क्यों, हम अपने पे हम्म, भी तो उंगली बहुत इजीली उठा लेते हैं ना। तो यहाँ पर ना ओवर गिविंग की चीज है, ना ओवर अंडरस्टैंडिंग। कई लोग ओवर गिविंग हो जाते हैं क्योंकि इतना नीचे गए, अब वो ओवर ही गिविंग होने शुरू हो गए, ओवर अंडरस्टैंडिंग होने शुरू। तो जैसे ओवर जैसी चीज तो कोई है ही नहीं, ये तो सारे साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं, वो लैग से ही आ रहा होता है, जितना स्प्रिंग दबा है उतना ही उछलेगा। Right? तो यहाँ पर जब आप ओवर कुछ करते हो, देखो कि कहीं तुम्हारे में वो वॉइड कहाँ है, तुम्हारा रिक्त स्थान जो दिल का है वो भरा नहीं शायद अभी। जो इतना गुस्सा है, शायद अपने से मोहब्बत ही नहीं हुई, शायद अपने पे ही नहीं पता, बीइंग how हार्श ऑन beautiful, oneself। so मैं कहती beautiful. हूँ कि कोई, तुम इतना गुस्सा कोई कर रहा है जब सब कुछ, तो शायद अपने से ये मोहब्बत ही नहीं करना, भूल गया मोहब्बत करना ना। और जब ऐसे लोगों को वर्कशॉप्स में या रिट्रीट्स में हम बात करते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, वो सब बैठो और यहाँ पे घूमो और कुछ कहना है कह दो, तो कोने में इतने सीनियर लोग बस रोना शुरू हो जाते हैं कि यार माँ को नहीं देख पाया, मैं बिजी रह गया, यार ये नहीं कर पाए, यार मतलब ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं कि माँ को पता भी नहीं होगा, बट उस बच्चे को जो डायरेक्टर है आज, वो टाइम याद कर रहा है, यार मैं पहुंचा नहीं। माँ ने कहा नहीं तो अपने आप को देख, और मैंने यही सोच लिया चल मैं अपने आप को देख लूं, मैं क्यों नहीं उठ के गया उस टाइम। वो गिल्ट में आज भी है, जबकि वो 52 साल की उम्र में पहुंच गया। अबैंडनमेंट, एक रिजेक्शन आना, फिर दूसरा आना। अब आप कैसे, आजकल जो यूथ है, जब मैं बात कर रही हूँ, मैं एग्जांपल दे सकती हूँ मुबिन। हाँ, Yes, please, जैसे please, जब डीयू में please. जब एक दो बार लेक्चर्स हुए या स्कूल्स में, 12th के बच्चे हैं, वो ये इन्फैचुएशन के टाइम होता है और स्ट्रेस भी है और समझ नहीं आ रहा, और 12th के एग्जाम और ये और मोहब्बत भी उसी टाइम में, इन्फैचुएशन भी हो रही है और एग्जाम भी और बोर्ड भी और ये भी है, और कोई थोड़ा सा रिजेक्शन भी आ गई, कोई पसंद आया जी, रिजेक्शन आ गई। तो फिर मुझे बड़े प्यार से मुझे कई बातें पता चलती हैं, तो मुझे अपनी बात याद आ गई। मैं कॉलेज में थी, 3rd ईयर था, पढ़ाई हो रही है, सब कुछ है,
जी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, ठीक है जी, हो गई बात खत्म। 12th में थी, नहीं जी जी। कॉलेज में, सेकंड थर्ड ईयर में, सॉरी 12th हम्म। कॉलेज में। और मेरी माँ ने मुझे सुना होगा, मैं 2-3 रातें रो रही होंगी, तीसरी चौथी मदर टीचर रही, तो आई कहती क्या हुआ, मैंने ऐसे सुधीर ने मुझे छोड़ दिया, बड़ा रो रही। मेरी माँ मुझे सुनती रही सुनती रही सुनती रही। तो मम्मी कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, बड़ा दुख होता है जब ऐसा कुछ होता है, बट एक बात बताऊं बेटा, ये ना दूसरा मिल जाएगा, कुछ नहीं होता, 2 दिन और ले ले, रो ले, खत्म कर, अभी पढ़ाई कर ले, सुबह उठ के मुझे भी स्कूल जाना है, सब ठीक है, दूसरा मिल जाएगा, अपने आप को यहाँ पर अपने पढ़ाई में लगा लो, धीरे धीरे चीजें भूल जाएंगी। मैं ऐसे हुई, खूब 2 दिन रोई, तीसरे दिन रोना ही नहीं आया, बट इतनी सुंदरता से उन्होंने मुझे 2 घंटे सुना, प्यार किया, फिर कहा ओके अब इससे ना बड़ी चीज देखते हैं, अब ये करते। तो मैं ये देखने लगी कि उन्होंने कितनी सुंदरता से डील किया, और मैं ऐसे रिलैक्स हो गई कि उन्होंने हवा नहीं बनाया मुझे। तो मैं इसलिए अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि अपने एग्जाम्पल्स बड़े, अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो बड़े मजेदार लगते हैं कि किस तरह से कई लोग खूबसूरती से डील कर लेते हैं। और कई बार जब हम बच्चों से मिलते हैं अब, क्योंकि अब जिंदगी बहुत अलग रुख ले चुकी है, वहां पे ऐसे रिजेक्शंस, ऐसे अबैंडनमेंट, ऐसे होता है कि उनके दिल टूट जाते हैं, ट्रॉमास ले लेते हैं, रिवेंज शुरू हो जाता है, यू नो, सो मच ऑन सोशल मीडिया हैपनिंग, एवरीथिंग हैपेंस स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट, you know, defaming, doing this, how can it ego? And it's so important to understand how to accept, how to listen, how to just be. So यहाँ पे abandonment, rejection छोटे छोटे बच्चों में है, hatefulness यहीं पर बस हम्म। शुरू हो जाता है, bitter होना शुरू हो जाते हैं, comparisons, अब ये हार्ट शुरू हो गया ना, नीचे के जितनी भी फिल्टर हो रहा है वो ऊपर आके अब हार्ट में सीविंग हो रही होती है, फिल्टर हो रहा होता है। अब फिर विमल जी, आपने कलर कलर नहीं बताया हार्ट वाला। ग्रीन, ग्रीन मैंने बताया ना, ग्रीन। ग्रीन कलर है, ग्रीन ग्रीन, ओके, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन, ठीक है। रेड, ठीक है। ये रेनबो कलर है, हाँ हाँ। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, हीलिंग। हम्म। किसी ने कुछ ठीक है। कह दिया तो ये अपने आप को वो फील करना कि रिजेक्शन हो रही है, अबैंडनमेंट हो रही है, मेरी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई, मैं अपने आप को पहले एक्सेप्ट कर पा रही हूँ तभी दूसरे को करना है। तो ये जो चीजें हैं इसको सिर्फ समझना, और जब हम कोई भी एक थॉट अच्छी सुनते हैं, सोचते हैं, तो दिल खिल जाता है, आई थिंक सब हम कर सकते हैं। और कोई भी एक थॉट अगर आपको डाल दी जाए नेगेटिव, तो दिल ऐसे कॉन्ट्रा, ऐसे ऐसे अंदर बंद हो जाता है। जब डर हो जाता है, अरे बच्चा वहां बाहर बैठा है, अरे फोन नहीं आया 5 दिन से, छोटी सी बातें बता रही हूँ, रात तक पहुंचा नहीं कोई, दिल ऐसे हो जाता है, जैसे ही आए हाँ ऐसे हो जाता है, ये ऐसे ही चल रहा है पंपिंग, इसमें कोई ज्यादा बड़ी गेम नहीं है भैया, दिल की, दिल धड़कता है यही बहुत है। कई बार दर्द आती है, कई बार तुम कहते हो हे भगवान तू ही अब रक्षा करना, बस यहां से अब आपका ऊपर का सफर शुरू होना शुरू हो जाता है, राइट। सो अब मैं एफर्मेशंस इसके बाद एक बार बताऊंगी, पहले जस्ट सिर्फ बता रही हूँ। अब आए हम जी, दिल की भी बात हो गई, अब आया थ्रोट चक्र, ये है नीला रंग, शिव जी का नीला रंग है ना, तो ये है हम्म। नीला रंग। अब ये है विशुद्धि, अब ये है कम्युनिकेशन, अब ये है मेरा ट्रुथ, अब ये है मेरा झूठ, मेरा सच, अब ये है एक्सप्रेशन। आपने नीचे सब कुछ कर लिया, पैसा भी कमा लिया, स्वादिष्टान आपने प्लेजर भी लिए, कंट्रोल भी ले लिया, अब हार्ट भी अच्छे, अब बोलना भी तो है किसी को, दैट आई लव यू, दैट आई डोंट लाइक इट, दैट आई स्टॉप इट, दैट आई, अब आपने एक्सप्रेस करना है। तो ये बहुत बड़ा काम है, आबरा की डाबरा की तरह वो बोलते हैं ना शब्द, मैजिशियन के सारे शोज जो हमने देखते थे, अब तो वो इतना नहीं होते, कि एज आई स्पीक इट बिकम्स, तो आबरा का डाबरा, और एक कबूतर निकलता है यहाँ से और एक वो खरगोश निकलता है, एज आई स्पीक। सो अब आपके शब्द, अब आपके शब्द मैटर कर रहे हैं। दिल में दर्द है तो गलत निकल आएगा, दुख निकल आएगा, दिल में खुशी है तो दुआएं दुआएं निकलती हैं, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बी गुड, है ना। तो दिल, अब आपका दिल के साथ अब आपकी ऊपर वाणी आनी शुरू हुई, यहाँ पर आपकी क्लैरिटी, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम नाउ शब्द लेगी।
यहाँ पर है आप कम्युनिकेशन, यहाँ पर आपका डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, उनकी वाणी, भाई डिप्लोमेट ने हम्म, बुलाई है, राइट। यहाँ पर है जब आपकी इंटेग्रिटी प्लेस, और ये है एलिमेंट इसका स्पेस। जैसे उसका हार्ट एयर था, ये स्पेस। जैसे शब्द बोलोगे वैसे ही कई टाइम्स में इको होकर वापस आने सुनाई देंगे। तो अच्छा बोल लो, छांट लो। हम्म, दिल आपका एक सेक्शन है जो छांट रहा है कि मुझे दुख हुआ तो मैं किसी को, दूसरे को भी रुला दूं, या मुझे दुख हुआ और मैं समझ गया तो दूसरा इस दुख से ना निकले तो मैं कुछ अच्छा ही बोल दूं, है ना। अब बोलने बिल्कुल, पे आया, ये अब बिल्कुल। पावर गेम। आप शब्द कईयों के सुनने के लिए इंतजार करते हैं, हम्म, सिग्नेचर एक है, बट वो सिग्नेचर कर दिया, हो गया, बट किसी ने कह दिया यार तूने बड़ी मेहनत की थी, कुछ नहीं होता, अगली बार हो जाएगा, बट आई एम सो प्राउड ऑफ, वो भी खुश, है ना। और कहती है यार देखा मैंने कहा था कुछ नहीं होना तेरा, बस खत्म। अच्छा भला इंसान जा रहा है और वो खत्म। और ये हर एक साथ होता है हमारी जिंदगी में। और यहाँ पे इश्यूज हैं इनर वॉइस के। एक है शब्द लेना, क्योंकि चक्रास चाहे हम उसे एक्शन में दिखा रहे हैं, सेंसेस में दिखा रहे हैं, शब्दों में दिखा रहे हैं, बट कुछ चीजें यहाँ से जब वार्तालाप होती है तो आपको सुनाई भी दे रहा है, इक्वल है, क्या मैं बोल रहा हूं और दूसरे को सुन भी पा रहा हूं, तो वो बैलेंस थ्रोट चक्र है। इनर वॉइस, क्या आप कंफर्टेबल हैं अपने आप से? क्या कहीं डाउट आके तो नहीं बैठ गया है? कहीं आपकी रिस्पेक्ट या कमिटमेंट्स और बिलीफ सिस्टम्स तो नहीं आपको रोक रहे हैं? राइट। कहीं हम मिसअंडरस्टूड तो नहीं हो रहे? कई बार होता है मैं कुछ भी करूं, पता नहीं, बात ही नहीं समझ आती। और तुम कैसे अपने शब्द बदलते हो सामने वाले को देखकर, जिस तरह से वस्त्र बदलते हो। हम्म, भाई अभी मैंने ये पहनना था और मुझे भैया कॉलेज के आए तो मैं अपना पूरा मटक मुटक के अच्छी से साड़ी पहन के एंड एवरीथिंग आई वांटेड एंड दिस एंड दैट। अभी यही मैं यूथ के बीच में होती, मैंने अपने जीन्स कैड्स पहनने थे और आराम से ऐसे अपना बनाना था और मस्ती से बात कर। आपने शाम को कहीं जाना है तो आप उस तरह से ड्रेसअप होंगे, आपने सुबह इंटरव्यू पे जाना है आप उस तरह से ड्रेसअप होंगे। उसी तरह से जिस तरह से वस्त्र बदल रहे हैं उस तरह से आपके शब्द बदल रहे हैं। जब आप अपने चक्रा से ऊपर आ रहे हैं तो आप जो रिसीव कर रहे हैं, आपकी चॉइस ऑफ मूवीज भी बदल रही हैं एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन भी बदल रहा है। दैट इज कॉल्ड नाउ द मैजिक ऑफ थ्रोट चक्र। क्या आप शाय हैं? क्या आप मिसअंडरस्टूड तो नहीं हैं? क्या आपको अपना कम्युनिकेशन करने में डर तो नहीं लग रहा, या आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बड़बड़ 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 समझ ही नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हैं, है ना। हो जाता है ना हम्म, कि यू हम्म, टू टॉकेटिव एंड इट्स सो डिफिकल्ट फॉर यू टू लिसन, है ना। यहाँ पे थ्रोट चक्र आ गया, यहाँ ये प्रॉब्लम्स आ गई। आर यू टू ओपिनियनेटेड, और आपने अपने ओपिनियन में, इतने हार्श ओपिनियन में दूसरे को पीछे कर दिया अपना अपना ओपिनियन देने में। डू यू लव टू गॉसिप? अब यहाँ का चक्रा जब थोड़ा सा इधर से उधर होता है तो वहां पे गॉसिप। टेल अस, जैसे आजकल के यंग बच्चे, सो व्हाट्स अ जी। गॉस या I love that. What's a goss? What's happening on Insta? I said, what? So I was asking, Acha, what is this? Is our language, ma'am. So what's a The goss? millennial, What's the happening? Happening. millennial Yeah, lingo, मिलने तो amazing. lingo. तो उन्हें गॉस भी देखने हैं, उनको सबके वो जो है ना अकाउंट्स भी चेक करने हैं और पूरी स्टोरी क्रिएट करनी है और मजे भी लेने हैं और चटकारे भी लेने हैं, जी, जी। राइट। सो अरे जब हम सब बैठते हैं तो कहते हैं ना कि मजेदार बैठे हैं और पूरी, अरे लेडीज से ज्यादा गॉसिप कौन करता है, हाँ बड़े मजेदार सारी बातें आती हैं, नीचे ऊपर दाएं बाएं सब कुछ। तो ये है थ्रोट चक्र, ये नीला है। अब यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन आई बिलीव इन माई सेल्फ शुरू होता है। अब जी हो गई स्टोरी यहां से इधर तक की। अब आया छठा चक्रा ये। अच्छा, सो ये जो है ये ओम शुरू हो गया।
इससे पहले जो था वो हम था, हम, राइट, लम वम यम, इस तरह से ये हम। अब यहाँ आया हमारा थर्ड आई। तो जितनी इंद्रियां, लेन देन, अच्छा मैं, गुरूर, पैसा, अटैचमेंट, ये वो सब कुछ करके जब आंखों से आपने यहां तक सब कुछ कर लिया, तब हुई यात्रा अंदर की। यू सी वेरी क्लियरली with your eyes, but you see the depth, the layers of depth with your eyes closed. कहते हैं किसी चीज को महसूस करना है तो स्थान में खड़े हो जाओ और आंख बंद कर लो। उस शोर से, उस शब्दों से, उस स्वाद से, उस गुड़गुड़ गुड़गुड़ सब कुछ से छोड़ दो, सिर्फ आंख बंद करो और उस स्थान तुम्हें बताने लगता है, वो व्यक्ति तुम्हें बताने लगता है, वो परिस्थिति तुम्हें खुद बयान करने लगती है, क्योंकि नाउ यू आर गोइंग इंटरनल and you're going beyond here, here, you know. So अब यहां से यात्रा ये बड़ी खूबसूरत यात्रा, ये है इधर से हम कहते हैं आज्ञा चक्र। ये आज्ञा देता है भाई, है ना। ये है जो अवेयरनेस है, ये है इंट्यूशन, यहाँ पे है जो बताता है कि वाइब्रेशंस साउंड से ज्यादा भी जल्दी ट्रैवल करती है। ये ये वाइब्रेशंस है विच ट्रैवल, इसका एलिमेंट लाइट है। साउंड आता है, बिजली का दिखती है, फिर साउंड सुनाई देता है, ये एलिमेंट ऑफ लाइट है। ये साउंड से ज्यादा जल्दी ट्रैवल कर देगा। ये So साउंड्स the ऑफ color for साइलेंस। this, हाँ, the color for this is the element of light. इंडिगो, हमारा वही Indigo. विपग्योर चल रहा है ना। Okay. हम ऊपर आ रहे हैं ना, वायलेट, अभी इंडिगो पे आ गए। रेड Okay. विपग्योर है ना, तो रेड Yes. Yes. है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, विपग्योर चल रहा है, ब्लू है, अब इंडिगो है। अब यहाँ पर है कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल, यहाँ है इंट्यूशन, यहाँ है इंटेलिजेंस, यहाँ है अवेयरनेस, यहाँ है इमेजिनेशन। भाई दो ही चीज है जो इंसान को जानवर से अलग करता है या दूसरे और चीजों से, एक इमेजिनेशन, एक एग्जीक्यूशन ऑफ दैट इमेजिनेशन, दैट्स इट। एक्शन, और क्या है ना, इंसान ही करेगा। जी. हाथी है वहां बैठ के अभी खाना नहीं बना रहा है ना अपना, वो तो सूंड से ही जाके लेगा, जितना भी चाहे बढ़िया। शेर भी वहां शिकार ही करेगा, वो अभी वहां पे आग जला के नहीं करेगा, वो कच्चा ही खा लेगा। इंसान है जो कहता है मैं कच्चा खाऊं, अच्छा मैं अकेला हूं, पता नहीं क्या खा रहा है, बर्फ के अंदर भी रखेगा, उसे बाहर भी निकालेगा, खाल भी है, शिकार भी करेगा, वनस्पति को भी देखेगा, वेजिटेरियन भी हो जाएगा, वीगन भी, ये इंसान है। सो दैट्स नाउ इमेजिनेशन, नाउ इंट्यूटिवनेस, नाउ द सेंस ऑफ नोइंग। आई नो यहां तक है जब तक मैं बोलता हूं, यस आई नो, एंड दिस इज व्हाट आई फील हार्ट, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, एंड दिस इज, बट नाउ इट्स अ सेंस ऑफ नोइंग। Now this is beyond the physical eyes. Now it is beginning to have the divine creation connection. Now there is wisdom. इससे ऊपर आ गए विजडम। जैसे जैसे मैस्लोज लॉ में भी आप ऊपर चढ़ रहे हैं, अब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। भीड़ कम होती जा रही है, और भीड़ लोगों की नहीं, भीड़ अपने इमोशंस की, अपने डरों की, अपने गिल्ट शेम की, अपने शब्दों की, अपनी सोच की आप फिल्टर करते जा रहे हो। और एक होता है समाज में बढ़ना, और एक होता है कोई कॉर्पोरेट है, आपके कोई जगह इंस्टीट्यूट है, कंपनीज हैं, औदा है, एक होता है ये बड़ा, और एक है आपकी इंटरनल जर्नी इधर चलती जा रही है। अब आप अकाउंटेबल भी हो, सेंस ऑफ नोइंग भी है। तो रतन टाटा जैसे लोग या बड़े जो लोग, वो फिर इतनों को इम्पैक्ट कर जाते हैं। एक का साइन ऊपर वाले का, एक का हाँ बोलना कितनों की किस्मत खोल देता है, और एक का नहीं बोलना ऊपर वाले का कितनों की किस्मत बदल देता है। यहाँ बहाव बनते नहीं हो आप, बहाव बनाते हो।
आप बन जाते हो, अब आपकी यात्रा ऊपर जा रही है। यहाँ विजुअलाइज है, यहाँ क्लियर थॉट है। अब इसका ऑपोजिट क्या है? इल्यूजन्स, मैं, हेल्यूसिनेशंस। एक विजन्स आती है, इंट्यूशंस आती है, और एक हम उसको विजन्स में करके एंजाइटी में ले आते हैं। एंजाइटी यहीं से शुरू होती है, नीचे से शुरू होती है, यहां तक आ जाती है ना। और हम यहाँ पे फॉग कर लेते हैं कहीं पर। यहाँ इमेजिनेशन बैलेंस नहीं रहती, फोकस का तो ख्याल ही अलग है। हम एक फैंटेसी रियल में घुसते हैं, हमें ड्रग्स की जरूरत पड़ती है उस एक को पाने के लिए, या सुन्न हो जाते हैं या खुल जाता है कुछ, क्या पता क्या है। यहाँ डिप्रेशन हिट कर सकता है, यहाँ लोनलीनेस आ सकता है, सब कुछ यहीं पर है। यहाँ पुअर जजमेंट्स भी हो सकती हैं। यहाँ पे कानों से सुना, तुमने छांटा नहीं, और अब आपने पुअर जजमेंट लेनी शुरू कर दी क्योंकि देखना ही नहीं कोशिश की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ डिवाइन इम्प्लीमेंटेशन अब लास्ट है सहसारा, ये जिसमें बच्चे का वो जो 40 दिन होते हैं ना, जो धीरे 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 आखिरी बंद करता है। रीढ़ की हड्डी तो फॉर्म हो जाती है बच्चे की पेट में ही, ये आखिरी जो हिस्सा यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मनादर, फू, ब्रह्मा ने फूका, जान फूक दी, और इसको धीरे, इसको बचा के रखना, इसको बचा, हर टोपी इसको बचा के रखना। ठंड यहाँ से बच आएगी या पैरों से आएगी, तो पैर भी गर्म रखो, सिर ढक लो, भैया हो गया, तुम तो ठीक ठाक हो। कहते हैं ना, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, पर उसको आराम से रखो, शांति में रहो भाई, जिंदगी है। तो ये क्राउन है, इसे 1000 पेटल, ये उसकी मेहर है, उसकी रहम है। यहाँ पे आप हाईएस्ट पोटेंशियल में होते हो, और हमेशा रहना वो तो उसकी कृपा है, लेकिन आप जीवन में भी कई बार आप कुछ करते हो, ठक ऊपर खुलता है, और सेकंड्स में आपको एहसास कराता है कि वो तुम उसके अंश हो और तुम नतमस्तक। यहाँ जिसको समझ आ गया वो झुक जाएगा, उसकी झोली खुल जाएगी, उसकी झोली भर जाती है। तो आपको संत मिलते हैं, आपको सूफी मिलते हैं, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि उनको जरूरत नहीं, पर लोग भाग रहे हैं उनके पीछे, और वो कहीं बैठते हैं, वो जगह मंदिर बन जाती है, वो स्नान मस्जिद बन जाती, वो जगह ही पाक हो जाती है और पवित्र हो जाती है। सो ये है जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये है जहां पे शिव और शक्ति एक हो गई। यहाँ है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, यहां से शुरू होती है और एक हो जाती है। यहाँ पर आपको दोनों चीजों का महत्व समझ आता है, सोचने का भी और उस चीज को करने का भी। यहाँ पर आपकी जो सारी एनर्जी एक फेथ में आ जाती है, सरेंडर में आ जाती है। इसका हाइंड साइड क्या है? एडिक्शंस, फिर से किसी भी चीज की एडिक्शंस, ऑब्सेशंस, मैं। सो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? फेथ वीक हो जाता है, अगर ये वीक हो तो। राइट, ये क्या है? यूनिवर्सल स्पिरिचुअल रियलिटी से हम दूर होने लगते हैं। जो इंसान यहाँ से पूरा तरह से खुलता है और ग्राउंडेड होता है, वो फिर पूरी तरह से जिंदगी, राजस जीवन जिंदगी जी सकता है। यहाँ ब्लाइंड फॉलोअरशिप आती है, यहाँ प्रश्न नहीं होता अगर वो हिल जाए, ज्यादा ब्लॉक्ड हो जाए, यहाँ डॉगमाज आ जाते हैं, यहाँ जजमेंट तुम और हम में फर्क आ जाता है अगर ये डिसबैलेंस होने शुरू हो जाए। यहाँ ग्राउंडेड नहीं रहते आप उस पर झुकते नहीं, आप इधर करके ऊपर ही रहते हो। ये इसका हाइंड साइड है, राइट। सो ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। आई होप आई कुड मेक दिस क्लियर वेरी सिंपली एंड वेरी। Yes, I'm already getting reactions, and
questions also. So Yeah. आप अगर हाँ, तो you बस मैं wanted ये to बताती हूँ हाँ, कि you wanted to share some clip also, some meditational clip, या बस something. उससे पहले मैं ये आपको ठीक है, बताती हूँ ठीक कि ठीक है, ठीक जब हम बात कर रहे हैं ये 7 चक्रा की, तो जो सबसे पहले है वो आई एम वाला है। उसका जो नाता है वो सीधा क्राउन से ऊपर आता है, फेथ, आई अंडरस्टैंड। तो फियर हमेशा फेथ से ही खत्म होता है। इतना डरते हो कि तुम कहते हो अब तू ही मेरी रक्षा करना। तो फियर के साथ अगर कुछ करना है तो फेथ आया। उससे ऊपर जो आई फील है, जो सेक्रल है, वो गिल्ट है, शेम है, आई फील जो आता है, उसको जब आप ऊपर करते हो तो थर्ड ऐसे करते हो, आई सी। तभी क्रिएशंस होती हैं। यहां सोचा, ये क्रिएट, यहां से आपने क्रिएट किया एक बच्चा, एक जान, एक सब कुछ, यहां से क्रिएटिविटी है, सेंसेस, सब कुछ, और फिर आपने अपनी यहाँ इमेजिनेशन। तो ये 2 चक्र साथ में चल रहे होते हैं, राइट। और उसके बाद जब सोलर प्लेक्स पे आते हो, आई डू, तो वो आता है वाणी पे। वाणी पे आता है आई से। तो जब किसी की वाणी बंद करनी होती है तो उसको कंट्रोल करना होता है, उसकी वाणी बंद कर दी जाती है। श्श। तो आपको कंट्रोल किया तो सबसे पहले वाणी बंद होगी। आज के सिनेरियो में कंट्रोल और एक्सप्रेशन का गेम है। कंट्रोल गेम चल रही है और लोग उतना ही एक्सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि हिला हुआ है। इतना एक्सप्रेस क्या करने की जरूरत होती है, हर चीज क्या बताने की जरूरत है, क्योंकि कंट्रोल गेम चल रही है। कंट्रोल एक्सप्रेशन ही कंट्रोल करने लगा है। आप कितने सोशल मीडिया में आप हैं वो आपकी चीज बता रहे हैं। हमें भी बताना पड़ता है भैया हम क्या करते हैं, समझ ही नहीं आता, वर्ड्स ही हर बार बदलते रहते हैं। यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन। और इसके बीच में हार्ट है, जहाँ कहता है आई लव, ओके, आई अंडरस्टैंड, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव अदर्स। सो दैट्स अ जर्नी। सो दैट्स इट। और एक वो इसमें एक हाँ, साइलेंस है, बट अगर आपको उसमें कुछ क्या हम affirmation, कुछ सवाल ले लें विभा जी, फिर हाँ वो आप प्लीज, जो एनीथिंग। because I'm getting some lovely या interactions and या yeah, I already told you Bhavna ji has mentioned Maslow's hierarchy of या needs यस and Naseeb ji ने हाँ he was there, he was उनका वीडियो भी ऑन था। अनन्या सॉरी अन्नपूर्ण डॉक्टर अन्नपूर्णा पृष्टि, मैं उनका पढ़ देती हूँ जो उन्होंने लिखा है। Ideas are getting more clear about chakras. Thank you very much, madam. So I think उनके जो chakras को related आपसे query थी वो clear हो रही है। Thank you कहा उन्होंने। डॉक्टर सीमा शर्मा जी हैं। Dear participants, if anybody has any query and they want to ask, please raise your hand. We'll unmute you also. So आप directly भी विभा जी से पूछ सकते हैं। डॉक्टर सीमा शर्मा कह रही हैं, क्या मूलाधार चक्र से ही मानव चेतना जागृत होती है जो उसे प्रकृति के अन्य जीवधारियों से श्रेष्ठ साबित करती है? ये सीमा शर्मा जी का प्रश्न है। आप अगर ये इसका जवाब लें फिर मैं अगला प्रश्न आप मूलाधार, मूलाधार अन्य प्राणियों के साथ मूलाधार जो है वो रीढ़ की हड्डी का खड़े होने का पहला मूल है। रोटी कपड़ा और मकान का जो कंसेप्ट है सेफ्टी का, वो एक जानवरों में भी सब कुछ है, हर पौधे में भी है उसकी सेफ्टी, राइट। सर्वाइवल है ये सब में कॉमन होता है, ये अर्थ रियलिटी है। जितने लोग अर्थ रियलिटी में है, किसी भी जीव जंतु, उन सब में मूल आधार है। फिजिकल रियलिटी में सिर्फ मनुष्य नहीं, हर प्रजाति और जाति उसमें है, क्योंकि ये मूल है। ये अर्थ से, ये पृथ्वी से, पृथ्वी लोक से, भूख भूख सब में कॉमन है। संचय करना कॉमन शायद नहीं होगा, बट कुछ जानवर अपने आप को हाइब्रिड करके वो पूरा हाइबरनेट जब करते हैं तो वो संभाल लेते हैं संचय, बट यूजुअली वो शिकार पे निकलते हैं। सो जो बेसिक है ये कॉमन ही है, क्योंकि हम इंसान है, खड़े हो गए हैं तो उसमें रोटी कपड़ा मकान, बट ये सब जानवरों में है, राइट। उसको एक गुफा चाहिए, उसको एक घोंसला चाहिए, हर किसी का घोंसला है। तो ये सब में कॉमन है, मूल आधार है वो हमारा, तो सब में है। थैंक यू विभा जी।
अगला सवाल सरस्वती जी का है। वो पूछ रही हैं, मैम हाउ कैन वी बैलेंस दीज चक्रास? इसके लिए नेक्स्ट वर्कशॉप करनी है, जब मैं पूरी तरह से एक एक करके अच्छी तरह बताऊंगी, क्योंकि यहाँ 1 घंटा था तो 1 घंटे में थोड़ा सा समझाना ही मुझे लगा, और फिर मेरी गलती आज। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, मैं No, इसी no, में not लग at गई। all. तो क्योंकि वो एक एक चक्रा को जब मैं समझाऊं तो उसको मैं फिर आपको महसूस कराऊं कि यहाँ पे बैलेंस ये है, फील करो, करो बैलेंस। सो अभी जो हम मेडिटेशन करेंगे म्यूजिक की है, सिर्फ म्यूजिक है, सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डी और How अपने much time for that? How much 10 time we'll मिनट्स need? 10 मिनट्स की है वो। ओके, तो बस एक बस स्टार्ट करते। हाँ, एक क्वेश्चन करके हम फिर we'll यस start with that. यस। So there is just one question and then we'll start with the meditation because yeah. How to have, Annapurna Pushri ji कह रही हैं, how to have an integration among 7 chakras for an integrated life? I think that you already answered. विकास शर्मा जी हैं, ये कह रहे हैं कि मैम अनाहत चक्र 7 चक्रों में मध्य का चक्र है, इसके ऊपर के चक्रों को साधना क्या सामान्य मानव के लिए आवश्यक है? और सर ये जो है सटल बॉडी है, ये आवश्यकता अनुसार नहीं है, ये हम्म है। इसको समझने की बात है कि जैसे एक आप मकान बनाते हैं तो बीच की जो आत्मा है, वो जो एनर्जी है, उसको सिर्फ ये है, इसको एक एक वो चक्र, वो एनर्जी का खेल है, उसको समझने की चीज है। और अनाहत के बाद समझना या ना समझना, जब अनाहत तक पहुंच ही गए हो तो शायद अपने हाथ में भी नहीं होता। इसको सिर्फ आप जान गए ABCD 26 लेटर है, अब इससे बच्चा सिर्फ जियो गो बनाता है या कितने ग्रंथ लिख दे, हमें क्या पता। सिर्फ इसको जानने का पहला स्टेप है। हाउ ब्यूटीफुल। बस मैं एक लास्ट कमेंट ले लेती हूँ असीम करकेटा जी का। मैम हाउ डू वी नो दैट आवर चक्रास आर डेवलपिंग और डेवलप, या हम ये कैसे जाने? बहुत अच्छा सवाल है मैम ये, कि हाँ वेदर इट ये इज बहुत स्टिल खूबसूरत डेवलपिंग। है। यस। सो जब मैंने वो बेसिक बताया चक्रा के बारे में, जो एक है कि भाई ये उसके फीचर्स हैं या कुछ, और उसके जो दूसरी साइड हैंड साइड में जो साथ साथ बताया कि कहीं डर से या, तो ये सिर्फ जानना कि आप किस किस उस फीलिंग में हैं, विदाउट जजिंग योरसेल्फ, राइट। जस्ट 10 में से आप 2 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, और चक्रा तो हमेशा ही चलता है, चक्र है ना सटल बॉडी का, चाहे वो ईश्वर का चक्र चले, भाग्य का चले, या अंदर बॉडी का चले, वो तो चक्र जब तक सांसें हैं वो चल रहे हैं। वो डेवलप भी हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, वो एक्सपैंड भी हो रहे हैं। उसको बैलेंस बड़ा है तो इधर अपने आप को चेतना से, चेतना और चिंतन और उसको महसूस करना, बस आप जब सोच बदलते हैं तो वो डेवलप भी हो रहे हैं और वो बैलेंस भी हो रहे हैं। आप सोच है इसको मार दो, उसके बाद का नहीं यार, चल माफी, सडनली हार्ट खुलेगा, महसूस करना। तो ये हर वक्त मूवमेंट में है और डेवलप हो रहे हैं। Thank you, Vibaji. Can we play the music, that clip, and then you please let us know. या प्लीज। Okay, Dr. कोई Baljeet. किसी को वो तो नहीं सुनना, अफर्मेशंस किसी को चाहिए तो मैं बता सकती हूँ, अगर किसी को चाहिए। अगर किसी ने सुनना है तो इफ दे थम्स अप, देन मैं सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा। Yes, participants, you can react to Madam's query. अगर affirmation just for this is what the affirmations are, if you want to, otherwise it's okay. Okay, I think you can play, Dr. Baljeet. Yeah. Yeah. So what we need to like just So listen or we close just the have to eyes? sit very calmly, Okay. spine straight. अगर पैर जमीन पे रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अपने आप को महसूस करना है वो इंद्रधनुष की तरह, बिल्कुल कनेक्ट करके अपने, पहले रेड कलर, फिर ऑरेंज कलर जिस जिस बॉडी पार्ट में, फिर येलो, फिर उसके बाद ग्रीन, और वो चलता रहेगा 10 मिनट में। आपका वो अपने आप हिलेगा, आपको महसूस होगा ब्लू, इंडिगो एंड देन फिर वायलेट। बस ऐसे कुछ नहीं, बस रोशनी महसूस करो, लेट इट वर्क ऑन इट्स ओन। Okay, yes. So we can start, Dr. Baljeet. थैंक यू। We cannot hear. Ma'am, it's not. Wait, just give me 1 minute.
Your voice is echoing and I cannot hear anything. Just give us 1 minute. I'm sharing again, ma'am. There is some. Yeah, no problem. You please share it and I'll just raise my thumbs up when I can hear. I'll let you know. So, dear participants, just like our expert has asked, you can just sit and listen to this and experience. Please let me know if you can hear. I still can't hear anything. Can't hear anything. No. Can Vibhaji play from her side? Will that help? Vibhaji, do you have this clip? Can you play on your laptop? Ma'am, there is some problem in this clipping, ma'am. It is Yeah, showing some There error. is a problem. Yeah, ma'am. It's Yeah. showing Can some you error. play I'll Vibhaji just from see. your I'll side? just see. Yeah, can you do that? Maybe it's some. मैं देख रही हूँ. हाँ, अगर आप करें तो. हाँ, मैं देखती हूँ. बहुत ही भयानक क्वेश्चन आपने पूछा है, बट मैं ही करती हूँ. I hope I'm not disturbing your chakra. तो भाई मैं तो अपने फोन से ही ऑन कर दूंगी और सब सुन लेंगे. हाँ, आप ऐसा कर लीजिए. Yeah, you can do Ma'am, that. you have to. That even I could. Yeah, ma'am, you have to share your screen first, ma'am. Yeah, screen आप share कर. You can. आप share screen. Do one thing, बलजीत जी, आप यहाँ से screen share कर दीजिए. Yes, ma'am. I was. She'll share the music and you can share the screen. Ma'am, just click on screen sharing. भाई क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? नहीं, ये सब नहीं आता. वेट, कहाँ पे? आप हाँ देखिए, आप उधर होगा नीचे. Just guide her, बलजीत जी. Yeah, ma'am. You can see the button, this green button. सुनो, छोड़ दो. मैं बोल रही हूँ. मैं अपने चक्रा. नहीं विभा जी, रुकिए. There's a green button down written share on it. देखिए कहाँ पर? आपके स्क्रीन पे होगा, नीचे शेयर लिखा होगा, जहाँ वो सब लोगोज हैं, चैट. मेरे तो ये उस पे है ना. अच्छा, अब ये चल पड़ा है इसका. ओके. देखो, ठीक है. ठीक है. आप म्यूजिक चला दीजिए. We'll listen and then बलजीत जी, you can just share the pictures and let the music go so we can kind of Okay, ma'am. coordinate. हाँ. Now we can't. हाँ. Can you hear? नहीं. एक second. Yeah. एक second. Let me see. आप बंद करिए विभा जी, मैं शेयर कर रही हूँ. Can everybody hear? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Some error is there in clipping, ma'am. Yeah. When ma'am can share the content with Baljeet, na, she can share it then directly. When I had sent you on the WhatsApp. Baljeet, please see. Yes, ma'am. I'm seeing them. I will get myself educated on this.
Can you hear now? Yes, yes. Perfect. Yeah, now we can. Continue. Now we can. Yeah, so we can start.
कि जाओ कि बिना गलती के वो गलती मैंने की है वो गलती करो। With each and every moment, I am safe, I'm secured, and protected in my physical body and reality. I'm secured with my finances in my life, and money flows to me comfortably. I'm living a healthy and a confident life peacefully and gracefully. I flew all my senses and sensuous experiences. I'm open to giving and receiving appropriate sexual energy. I flow through all my senses. I am open to enjoying all pleasures that the world has to offer to me. All aspects of my life are under appropriate control of the universe. I am strong and powerful, and I take charge of my life. I am open to receive and give love. I forgive myself and others. I offer in love, for love, and to live a life of love to myself and others. I'm open to communicate. I'm listening precisely and expressing adequately. I speak my truth to myself confidently. I believe in myself. I'm open to universal wisdom. I'm confident of my own reality with divine wisdom. I have the power to manifest and ready to implement all my visions. I am the universe, and the universe is in me. I am the creator of my destiny and living the moments in faith. Thank you. All chakras are well aligned, and I feel and shine, balance, and feel safe with my powers in me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Beautiful. Thank you for those wonderful affirmations, Vibhaji. And I would request the participants if they have any reactions, can they just share it here? उससे पहले मैं एक सवाल ले लूंगी विभाजी because they have to go into a lunch break and then again we have a set of sessions. It's wonderful
we've already had so much of what do you say, food for our soul and our mind and our body chakras. ये सवाल है डॉक्टर त्रिलोचन जैना जी का. वो कह रहे हैं, मैम, whether development of chakra is for common man or for intellectuals. ये इनका सवाल है त्रिलोचन जैना जी का. Anybody, if they want to ask anything or say anything, I'll give one person a chance because yes, Vibhaji, please. सर, जो मुझे समझ आना शुरू हुआ है, समझी तो नहीं हूँ अभी पूरी तरह से, जो समझ आना शुरू हुआ है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ने ये तंत्र के थ्रू अपने अंदर की सारी एनर्जी को महसूस किया और उसको व्यक्त किया और उसको बनाया और उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाया. हर इंसान अपने आप में विशेष है. कॉमन और अनकॉमन हम बनाते हैं अपने कंपैरिजन से. एक बच्चा जितने भी मार्क्स लाता है वो उस टाइम में अपनी पूर्णतः अपना बेस्ट देता है, वो चाहे 70 आए चाहे 95 आए. सो ये एक चक्र है जो सटल बॉडी में है. ये एक आत्मा के साथ, एक रीढ़ की हड्डी के साथ, उस ध्वनि के साथ है जो हर किसी में विद्यमान है और वो अपने टाइम में डेवलप होते हैं. कई बार हम ये बोलते हैं कि जिस तरह से हम जन्म ले रहे हैं अपने कर्मों के हिसाब से, उसी तरह से शायद चक्र का एहसास भी होने लगता है. एहसास होना या नहीं होना ये हमारी चॉइस है कि आपने ये जानना चाहा, बट वो है और उस एनर्जी को हर कोई फील कर रहा है. दैट्स व्हाट आई फील. Yes, thank you, Vibhaji. A lot of appreciation coming. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. सीमा शर्मा जी, अमित कुमार भगत जी. मैं एक लास्ट क्वेश्चन, ये मेरा सवाल है. I don't know. I think when you're talking about, it's about soul and body, right? So if in one life when and then you take another life, आप अगले जन्म में आप birth लेते हैं, you never know where you're going to take rebirth or how you're going to take rebirth. So do we carry that kind of alignment of chakras that we had in our first birth to the next birth that we have taken rebirth, or there is some new alignment? Like, I'm talking about the body. मतलब हो सकता है इस जन्म में I am a woman, maybe next जन्म I am a man. So the alignment of my chakras in this life, will that continue with my body in the next life, or there will be some new alignment and new disalignment? I mean, this is, I don't know how to, but I hope you understood my question. जो मुझे समझ आ रहा है, जो मैं आज बता सकती हूँ, ये है कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में है हम. चक्र उसका एक पार्ट है कि हम उसका अंश है और सब कुछ अंदर है. हमारी सोच हम बदलते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं. राइट. आपको चोट लगी है तो फर्स्ट एड तो आप दे रहे हैं, पर उसकी जो जो यात्रा है और उतना जो समय है वो लगता ही है. बच्चे को, इंसान के 9 महीने ही लगते हैं, हाथी के बच्चे को 18 महीने लगते हैं. उस तरह से हर किसी का अपना समय है. और जो स्पिरिचुअल जर्नी है, चाहे हम उसके चक्र के जानने के लिए या उस चक्र वो एक्सपीरियंस में, हम ह्यूमन बॉडी में एक्सपीरियंस करते हैं और जितनी हमारी मान्यताएं हैं या उसको जानने में या एक्सपीरियंस करने में, वो कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो नेक्स्ट जन्म में वहीं से जिंदगी शुरू होती है जहां छोड़कर आए. सो वो आप जैसे क्लास 5वीं क्लास से 6ठी क्लास में आना है तो पहले चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, नहीं तो लाल निशान लग जाएगा, अंडरटेकिंग आ जाएगी. पहले यूनिट टेस्ट में आ जाती थी, फिर वो हाफ ईयरली में आ जाती थी, फिर एग्जाम में आती थी, फिर कंपार्टमेंट है, फिर पास हो रहे, नहीं तो फेल हो जाएंगे. सो इसको मैं बहुत सरलता से आपको मतलब मैं बता रही हूँ, लेकिन इसकी अलाइनमेंट एंड अवेयरनेस ऐसे कहते हैं कि पिछले जन्मों से आपकी आती है. कई बार कहते हैं ना प्रोडिजी कि भाई बच्चे को, छोटे से बच्चे को कैसे पता, तो उसे चक्र का रूप कहो या उसको एक स्पिरिचुअल जर्नी की बात करो कि उसकी, और वो कर्मों के थ्रू आनी है ना. कर्म है ना, अर्थ रियलिटी तो एक्शन है ना. तो बाकी तो सटल बॉडी की बात है, और सटल बॉडी अंतहीन है. जितना अगर माउंट एवरेस्ट 8,488 जितनी भी है, उतनी शायद समुद्र की वो जो आइसबर्ग की तरह गहराई 11,000 15,000 फुट पे नीचे जा रही है. हमें पता ही नहीं.
तो जितना जिस स्टेज तक है उसे ऐसा मानते हैं कि वो एक एक पंखुड़ी खुलती है और उस अगले जन्म और फिर अगला जन्म, और हमें क्या पता मोक्ष भी क्या है और कुंडलिनी भी क्या है। जिसकी जग गई वो फिर बोलते नहीं है, वो अलग है लोग। तो मुझे यही समझ आना शुरू हुआ है शायद। नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत। एक मैं रिएक्शन पढ़ देती हूँ एंड देन आई थिंक आई विल wind up for the day for the next session. डॉक्टर शिवांगी नैथानी देवरानी जी हैं, इन्होंने लिखा है, Thank you, ma'am. I had some tingling sensation in my hands, felt relaxed. I think she's giving her feedback to the meditation music session that you did with them. So this is the reaction, and my friends, I think I will have to now deliver my official vote of thanks to Vibha Guttu ji. मैं विभा जी को बता दूं कि 10:30 बजे से सेशन शुरू हुआ था. They are just going to have this small lunch break, and then again we have two sessions. Lot of reactions coming from participants. They are showing their reactions by clapping hands, by thumbs up, by heart. सो अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे. मुझे लगता है विभा जी, आपका पैगाम हमारे पार्टिसिपेंट्स तक पहुँच चुका है. और on behalf of my college, ERSD College, and our co-partner to this course, Ramanujan College, University of Delhi, and from my respected professor, principal sir, Professor Gyantosh Kumar Jha ji, who had, envisioned this entire program that we should have something on stress busting. So, and then you giving such a beautiful part to this kind of discourse and this kind of learning. It was amazing, Vibhaji. So on behalf of my principal, sir, on behalf of my IQAC in charge, Professor Vinita Tuli, she's right there. She's been listening to you. Vinita ma'am is there. And she also spoke in between. अगर विनीता मैम आप कुछ कहना चाहें तो on behalf of विनीता जी, on behalf जी Yes, विनीता जी. it was really a wonderful session, ma'am. And really, I feel elevated. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for joining. Thank you, and thank you for tolerating my this new No, math ma'am. का it कुछ was नहीं not मुझे आता था. माफी. आज मैं पक्का पक्का लेसन्स लेके सीख लेना है मुझे अगले एक हफ्ते तक. Thank you, thank you, thank you, Thank- Vibha ji. Thank Thanks you, a lot. ma'am. Vibha ji. Thank you for Thank joining. Thank you. Yes, Thanks and a so lot. and above all, thank you from my entire team and my tech team who's here to help us out. Dr. Baljeet, thank you, Dr. Baljeet, for being there and for taking care of the problems that was there and how nicely and smoothly it went across. And thank you from the entire participant here, all the participants. Manvendra Kumar ji keh rahe hain, thank you. Everybody, all the participants, they're giving reactions. They're all very happy and they're conveying their thanks to you. So, ma'am, thank you, Vibhaji, for giving us such a nice phase of understanding of your knowledge. Thank you so much, and I wish you all the best and keep doing this good work. Thank you so much, Vibhaji. Thanks a lot. Thank you. Have a good day. Bye bye. So, dear participants, we'll be